Fine. Good morning, friends. Through this meeting, we will try to understand one of the important feature, which is probably the heart of our tool. That is trading strategy. It is nothing but bias with the help of two moving averages. Before that, let me declare that through this platform, I'm trying to educate and explain mainly to our clients who are using Bazaar indicators. Further to this, I'm also declaring that I'm not carrying any position in the stocks. I'll be going to explain. Fine. Before that, after this declaration, now announcement. Before the topic, let me show you we are coming out with this new avatar of Bazaar indicators shortly of our advanced version. Now let us move to topic. In the main screen only, we have provided the strategy of trading. This is, we are going to understand what it says. Along with this, as I have mentioned in my earlier videos, मीडियम टर्म ट्रेंड एंड मंथली पीरियड, ये तीनों की अगर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होती है, देन यस, our success ratio will improve. Not only improve, it is bound to improve. As many of you know, that in our tool we have option of filtering the stocks. Yani for respective strategies we can identify the stocks according to the selections. तो डेली में जाके स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करके वी हैव डिजाइन 7 स्ट्रेटेजीज. अब ये इसमें ये साइड वाली 4 पॉजिटिव है, ये 4 नेगेटिव है, एंड 1 इज स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड. इसके ऊपर पॉजिटिव, इसमें एक ही लेवल आता है, उसमें उसके ऊपर पॉजिटिव और उसके नीचे नेगेटिव. नाउ विल मूव टू द फ्लो ऑफ द सेंटिमेंट्स. यानी बायस, ये जो क्रॉस ओवर का जो लॉजिक है उसका बायस क्या है, दैट इज द मैजिक, नथिंग बट द स्प्लिटेड इनटू 4. तो पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं. अभी ये यहां देखिए पॉजिटिव ट्रिगर, यानी इसमें जो मैंने बताया था पॉजिटिव ट्रिगर 1 of 4, तो दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. ये क्या हुआ यहां पे, मई 26 को ये ट्रेंड है, शायद ये स्टॉक कौन सा है, ट्रेंड. तो पॉजिटिव ट्रिगर हुआ था ऑन मई 26. देन ग्रेजुअली एक ही दिन का सिग्नल है पॉजिटिव ट्रिगर, दैट इज 1 of 4. उसके बाद इट बिकम्स 2 of 4, यानी स्टॉप लॉस थोड़ा दूर लेकिन नजदीक. यानी ये PL2 3-4 दिन या थोड़े दिन रहता है, देन ग्रेजुअली इट बिकम्स
PL3 of 4, यानी ये मोमेंटम रहता है। यहाँ पे ये जो 3 of 4 है वहां पे चट मंगनी पट ब्याह जैसा सिनेरियो रहता है, where we can go positive but simultaneously either take the insurance or book the profit, and thereafter it becomes risky. That is the fourth stage of this trigger, May 26 वाला, after 8-10 days, not necessary को 8वें दिन ही होता है, gradually it goes to this zone, वहां पे we have to take the insurance. Insurance मतलब कि if we are trading in the F&O, then either we have to hedge through options or go on profit booking gradually. Yes, finally वो आता है नीचे again because it attracts profit booking and it losing the attraction of buying. That is what we can say. यहाँ buying का attraction कम होने के बाद it goes to test. तो टेस्ट क्या करेगा पहला कि वो उसका PL1 और 2 सस्टेन होता है, या ये ग्रीन लाइन जो मैंने बताया अभी कि मीडियम टर्म ट्रेंड इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, तो इट हैज सस्टेन द मीडियम टर्म ट्रेंड, इट बाउंस बैक फॉर न्यू हाई. दिस इज हाउ दिस लॉजिक मूव्स कि ग्रेजुअली व्हाट वी कैन डू इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. ये जो रेड लाइन दिखती है दैट शुड बी अवर स्टॉप लॉस. यानी स्ट्रेटेजी में यहां पे ये जो 380-60 है, 10,380-60, that is nothing but this red line. ये जो रेड लाइन है वो और मीडियम टर्म ट्रेंड, ये जब तक इंटेक है देन वी कैन गो ऑन होल्डिंग, या तो हेज करके वापस एंट्री मारो. सिमिलरली वी कैन डिजाइन फॉर नेगेटिव. वी कैन सिलेक्ट हियर ये जो स्ट्रेटेजी नेगेटिव है, see here it is triggered negative, then on first day it is NL1 of 4, then gradually it goes to 3 to 4. अब ये 3 to 4 हो जाता है, at that time short, going short is risky. तो यहाँ पे हम either hold a position and hedge with options, यानी कॉल ले सकते हैं दूर का, लेकिन we have to cover short or avoid short. This is the magic which I am identifying or explaining to you all is ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है which is working as a heart of our product. Along with this, ये जो मीडियम टर्म ट्रेंड और ये मंथली पिवट, अब ये मंथली पिवट भी एज आई एक्सप्लेन इन माय अर्लियर वीडियोस, ये क्या होता है, फर्स्ट डे को यानी मंथ खत्म हुआ 30 जून, तो अब ये पूरा महीना सेम रहेगा एंड दिस विल गो ऑन चेंजिंग. यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ये दो, अभी इफ आई एम होल्डिंग पोजीशन इन माय निफ्टी 50 एट दिस रेट, तो व्हाट विल बी माय क्रूशियल लेवल्स 10,380 एंड 9,936. ये जब तक इंटेक है तब तक ये यहां तक जा सकता है, यानी इट डजंट हैव एनी टेंजिबल रेजिस्टेंस बिफोर 10,888, यानी 200 दिन की एवरेज है तब वहां तक जा सकता है. बट माय स्टॉप लॉस इज वेरी फार, particularly this medium term trend, it may trade choppy. Now after this, what I feel, this entire move along with these three, one should keep a watch on this yearly pivot also.
Of course, at present it is very far and one should not bother about it. But once this level is clear, then it is quite likely it may go up to 11,682. So these are my 4 things. Abhi ye yearly pivot we will not bother about. Yes, it is quite likely, but one should take care after this. अब ये 10,880 जाने के बाद it is very much likely it can test yearly pivot because 6 महीना अभी बाकी है. Now as long as medium term trend and monthly pivot along with this are intact, one should avoid fighting the trend which is apparently positive. यानी ये positive bias को पॉजिटिव ही लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ इमोशंस. कि भाई अगर इमोशंस में गए तो क्या बोलेंगे हम कि बहुत बढ़ गया उसको नीचे आना पड़ेगा. नो नो, दैट इज नॉट प्रॉपर. वी कैन ट्रेड पॉजिटिव. इफ निफ्टी इज नॉट अवेलेबल, लेट अस गो टू रिस्पेक्टिव स्टॉक्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी वेर प्रोवाइडेड the report. This report will filter the stock. पॉजिटिव लेवल 104 ढूंढना है हमें कि भाई कल के मार्केट में आफ्टर इतना बढ़ गया बाद में कोई स्टॉक है क्या. विल गो टू सी. अभी ये पॉजिटिव है तो विल गो टू सम स्मॉल फोल्डर विच हैव प्री डिफाइंड. CNX 100 में जाएंगे. ये फ्रंट लाइन के स्टॉक्स है. अभी नेगेटिव सिलेक्ट करते हैं तो F&O करेंगे, लेकिन फॉर पॉजिटिव ट्रिगर वी विल फाइंड आउट कि भाई कोई स्टॉक लेने जैसा है क्या एट दिस लेवल. अलोंग विथ दिस पॉजिटिव ट्रिगर वी कैन ऑल्सो filter certain things, but at present we are filtering only these parameters. We are not opting for another. We can design even RSI also define. यानी डिसाइड कर सकते हैं कि 50 से 60 के बीच का स्टॉक चाहिए. But at present we are not bothering for that. Let me filter the stock which is triggered positive. तो भारतीय एयरटेल आया, एक्साइड आया, GMR आया, HCL टेक्नो. अब ये देखिए कि ये लेवल में भी these are the stocks which are indicating positive bias. Now let us understand further how Tata Motor is triggered और उसमें ताकत क्या है और रिस्क कितना है. अब ये ताकत मैं बोल रहा हूं वो दैट इज ऑफ टाटा मोटर. अभी खुद की ताकत देख के बाद में वी हैव टू डिसाइड कि भाई टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन टेक द रिस्क इन. अब ये टाटा मोटर में क्या ट्रिगर हुआ देखिए, यहां पे लिखा क्या है पॉजिटिव लेवल 104 और उसका लेवल क्या है 101. 101.50. monthly pivot is 101.80 and medium term. That means ये तीनों parameters are indicating that Tata Motor is triggered positive fresh. Now let us understand in chart. Now in chart also see what was the situation earlier. It was triggered here, then went PL2, PL3 and finally after reaching to PL4 it has found profit booking. अब उसको यहां कैसे अटका. स्ट्रेटेजी तो नेगेटिव हो गई थी, बट व्हाई इट वाज स्टॉप्ड हियर. दैट इज बिकॉज ऑफ medium term trend. See, it has sustained medium term trend. Now after retesting medium term trend, it has bounced back again. Now it is quite likely as long as these 3 parameters are positive, it could go right up to testing the earlier resistance. यानी earlier जो हाई बना था वहां तक जा सकता है. तो how easy you can find out the stock and how easy you can interpret the level. So one can write positive as long as 101, 101.80 या तो ultimate stop loss is 97.80.
और रिस्क वी कैन टेक अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ आवर पॉकेट, यानी 97-80 के नीचे नो इमोशंस, और as long as these three levels are intact, it is quite likely it can go right up to 131, because it doesn't have any tangible resistance before 131. Tangible resistance means what? That is in terms of averages. तो 10480 एक लेवल है जो अभी रिसेंट हाई बना था स्विंग का. once that is crossed, heavy buying may appear because it is just a beginning of the month. So this is what we can do for positive trigger. Now similarly we go for negative trigger. For that we will go to a future near month folder. अब यहां ग्लेनमार्क आया. अब ये ग्लेनमार्क एफ&ओ में है, and that is only the stock turned negative from positive trigger. Okay, now we'll go further. क्लोजिंग है, $435 का क्लोजिंग है, नेगेटिव ट्रिगर का लेवल 443.50 है, एंड मंथली पिवट इज नॉट सपोर्टिंग. दैट इज क्रूशियल. अभी उसको सपोर्ट कहां पे मिलता है? शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ये 20 दिन का एवरेज है 432, वहां पे एक सपोर्ट है. बट बिफोर इफ दैट इज नॉट मेंटेन, यानी यहां पे अगर सपोर्ट नहीं मिला तो इट इज क्वाइट लाइकली टू फाइंड heavy panic sell right up to 387.50, because it doesn't have any support before that. 394 एक swing का support है, and then it can go up to 387.50. this is how you can. और यहां पे भी देखिए ये नेगेटिव ट्रिगर, इट इज अब ये रेड लेवल जो है दैट इज दिस विल बी माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एंड माय अल्टीमेट स्टॉप लॉस इज 459.50. यानी 20 रुपया का रिस्क, और स्टॉक नीचे जाता है 432 के नीचे तो अनदर 50 रुपीज इज पॉसिबल. तो ये एक ऐसी चाबी है कि आई नीड नॉट टू ओपन द चार्ट, एंड विदाउट दैट ऑल्सो आई कैन डिजाइन और इंटरप्रेट माई स्टॉक, एंड आई कैन आइडेंटिफाई द स्टॉक. अब ये बढ़ गया है वो बेचने जैसा, उसके बदले ये जो क्लियर नेगेटिव है, एंड दैट टू टेक्निकल क्या बोल रहे हैं कि इट विल टर्न पॉजिटिव अबव 446, यानी 11 रुपया ऊपर जाता है तो वो पॉजिटिव हो गया है. देन वी हैव टू सरेंडर इफ यू आर गोइंग शॉर्ट. You can monitor this stock for next 2 sessions. If it doesn't go above this 2, then it is quite likely it will, this 432 will be challenged, and once that is lost, heavy profit booking will be seen. अभी ये हमने क्या देखा, अभी टाइम है तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वन मोर रिपोर्ट, ट्रिगर लेवल रिपोर्ट, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. खास करके जो स्क्रीन के सामने बैठते हैं उनके लिए ये रिपोर्ट बहुत अच्छा है. और इमोशंस को घर पे छोड़ के आए तो दोनों साइड का बायस रख के अगर ये स्टॉक में काम करे, और आफ्टर 315 वन कैन डिफाइन दिस स्टॉक एज BTST और STBT. तो ये ट्रिगर लेवल रिपोर्ट है विच इज इंडिकेटिंग बैटल बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स. तो भारत फोर्ज में
पॉजिटिव ट्रिगर हुआ है, सी एट प्रेजेंट ये दोनों स्टॉक नेगेटिव चल रहे हैं, स्ट्रेटेजी नेगेटिव है, बट एज फार एज दिस साइन इज कंसर्न इट इज ट्रिगर पॉजिटिव एज वेल। तो हम भारत फोर्स के अंदर पहले जाए, वो क्या बता रहा है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नेगेटिव है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नेगेटिव है, फिर भी ये पॉजिटिव हुआ है। तो 359 तो मेरा पहला इंडिकेशन क्या है, एज लॉन्ग एज इट इज, ये अभी ऊपर में 376 तक भी जा सकता है, बट बेयर्स में अटैक एंड ट्राई टू हैमर अप टू 349 और 344। बेयर्स को पिक्चर में रहने के लिए दे विल हैव टू ब्रिंग दिस स्टॉक बिलो दिस, बट इफ दे फेल देन इट बिकम्स BTST, यानी 350 के ऊपर या तो 351 के ऊपर बंद देता है कल, तो इट बिकम्स BTST। ये 2 दिन का मोमेंटम के बदले वो थोड़ा रिट्रेस होगा, लेकिन एज लॉन्ग एज दिस 349 इज इंटैक्ट, it is positive for PL1. See, I'll try to know what will happen if it close above 350. See what it indicates, it is triggered positive. That means कि this tool has calculated in advance कि ये 350 के ऊपर रहता है तो नेगेटिव स्ट्रेटेजी बिकम्स पॉजिटिव। तो वैसे भी मीडियम टर्म ट्रेंड एंड मंथली पिवोट्स आर सपोर्टिव, तो इट इज क्वाइट लाइकली टू गो अप टू 402। सिमिलरली REC में नेगेटिव पॉजिटिव ट्रिगर का नेगेटिव हुआ है, तो ये रिपोर्ट दोज हु आर ट्रेडिंग इंट्राडे उनके लिए बहुत अच्छा रिपोर्ट है, और नो इमोशंस, एंड एट द एंड one can take the judgment of BTST or STBT. Friends, this is what my magic of moving average is. I try to explain. Those who are using Bazaar indicators will start using this identification of stocks, how to identify the stocks with the help of our strategy report. That's it. If anybody is interested in further inquiry, they can write to me or call to me on my mobile. Fine for the day. If you found this information was helpful, please select the like icon and subscribe for our channel. You may also share it with your friends. If you want any further information about our tool, call me on this number or write to me at info@bazarindicators.com. Thanks.